میرے پیارے خداوند کے فرزند، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لمحے خاموش ہو جائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک لمحہ کے لیے خدا پر دھیان لگائیں جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ وہ خدا جو کبھی دیر نہیں کرتا، جو اپنے وعدوں کو کبھی بھولتا نہیں، جو اپنے بچوں کو ہمیشہ ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، شاید آج آپ کے دل پر قرض کا بوجھ ہے، شاید آپ کے پاس وہ وسعت نہیں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، شاید ہر طرف سے دروازے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن سنیے، آج خدا کا روح آپ سے کہہ رہا ہے، میں وہ دروازے کھولنے والا ہوں جو تمہارے لیے بند کیے گئے تھے۔ اس لمحے ہم دعا کے اس مقام میں داخل ہو رہے ہیں جہاں خدا آپ کے مالی قید خانے کے تالے توڑنے والا ہے۔ آئیں مل کر دعا کریں۔ اے خدا، میں تیرے حضور آتا ہوں، اپنی غربت، اپنی کمی، اپنی بے بسی، اپنے قرض کے بوجھ کے ساتھ۔ میں جانتا ہوں تو وہ خدا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے خداوند یسوع، میں تیرے حضور کھڑا ہوں، میں تیری حضوری میں اپنی زندگی رکھتا ہوں۔ جن دروازوں کو لوگوں نے میرے خلاف بند کیا، جن مواقع کو دشمن نے چھینا، جن خوابوں کو غربت نے کچل دیا، اے خدا، آج کے دن وہ سب کچھ دوبارہ کھول دے۔ میرے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیری محبت مجھ سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو جانتا ہے میں نے کتنا برداشت کیا، کتنی راتیں آنسوں میں گزری، کتنی بار میں نے سوچا کہ شاید میری زندگی میں کچھ نہیں بدلے گا، مگر آج تیرا روح مجھے کہتا ہے میں تمہیں نئی شروعات دینے جا رہا ہوں۔ اے خدا، میں تیرے سامنے اپنے تمام قرضے، اپنے بل، اپنے مالی بوجھ، اپنے خاندان کی غربت، اپنی روزی کی تنگی سب تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی عقل پر بھروسہ کیا، میں نے اپنی طاقت پر انحصار کیا، مگر اب میں تیرے فضل پر انحصار کرتا ہوں۔ اے خدا، میں مانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں، مگر تیرے ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ تو وہ خدا ہے جو صفر سے نعمتیں بناتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے، جو غلاموں کو بادشاہ بناتا ہے۔ اے یسوع، تو میرے لیے روزی کے دروازے کھول، تو آسمان سے وہ رزق برسا جو کسی نے نہ سوچا ہو۔ میرے خدا، میں تیرے حضور قرض کی لعنت کے خلاف دعا کرتا ہوں۔ ہر وہ طاقت جو میری کمائی کو کھا گئی، جو میری محنت کو ضائع کرتی رہی، جو میرے وسائل کو باندھے ہوئے ہے، میں یسوع کے نام میں اس کو توڑتا ہوں۔ اے خدا، تیرے پاک خون کے وسیلہ سے میں ہر مالی لعنت سے آزاد ہوتا ہوں۔ اے میرے رب، جن رشتہ داروں نے میرا مذاق اڑایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جن دوستوں نے کہا کہ میں ناکام ہوں، جن لوگوں نے کہا کہ میرا وقت گزر گیا، آج تو ان سب کو دکھا کہ تیرا فضل سب سے بڑا ہے۔ میرے خدا، میری زندگی میں اتنی برکت لا کہ میں دوسروں کے لیے بھی وسیلہ بن جاؤں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا خدا میری غربت کو برکت میں بدل رہا ہے، قرض کی لعنت اب ختم ہو رہی ہے۔ میرا خدا میرے لیے نئے مواقع پیدا کر رہا ہے۔ یہ خدا، میں جانتا ہوں کہ تو کبھی دیر نہیں کرتا، تو جانتا ہے کب اور کیسے میری حالت کو بدلنا ہے۔ میں انتظار نہیں بلکہ ایمان میں کھڑا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ میرے یسوع، جب سب کچھ ختم لگ رہا تھا تو وہی تھا جس نے مجھے سہارا دیا۔ اب میں وہی زبان جو شکایت کرتی تھی، اب تیرے جلال کا اعلان کرنے کے لیے کھولتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ خدا میرا رزق دہندہ ہے، میرا مددگار ہے، میرا نجات دہندہ ہے۔ میرے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ابھی اس دعا کو سن رہا ہے، اس کے گھر کے بند دروازے کھل جائیں، اس کی روزی میں برکت آئے، اس کے قرضے مٹا دیے جائیں، اس کی محنت کا پھل اسے ملے اور اس کی زندگی تیرے جلال سے بھر جائے۔ اے خداوند، جو کام سالوں میں نہیں ہوا وہ اب ہفتوں میں ہو جائے، جو رکاوٹیں دشمن نے کھڑی کی وہ تیرے ہاتھ سے گر جائیں، جو بندشیں اس کے مالی بہاؤ پر لگائی گئیں وہ ابھی ٹوٹ جائیں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں، میرے خدا، تو میرے لیے معجزے کر رہا ہے، تو وہ دروازے کھول رہا ہے جو انسان نہیں کھول سکتا، تو وہ راستے بنا رہا ہے جو کہیں نظر نہیں آتے، تو وہ مواقع دے رہا ہے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں کہتا ہوں، اے خدا، تیرا نام مبارک ہو، کیونکہ تو قرض کی لعنت کو توڑ رہا ہے، تو میرے رزق کے دروازے کھول رہا ہے، تو میری زندگی میں مالی آزادی لا رہا ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں کیونکہ تو وہ خدا ہے جو ہمیں محرومی سے نکال کر بھرتی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو وہ رب ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، جو بنجر زمین پر پھول اگاتا ہے اور جو ان کے لیے راستے بناتا ہے جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے خداوند، میں ایمان کے ساتھ تیرے حضور آتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آج کا دن میری مالی آزادی کا دن ہے۔ آسمان سے برکتیں میرے لیے اتر رہی ہیں، قرض کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں۔ میرے یسوع، تو نے فرمایا کہ جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا۔ آج میں ایمان سے مانگتا ہوں کہ تو میرے گھر پر، میرے کام پر، میرے کاروبار پر،
मेरे हाथों के काम पर बरकत नाजिल कर, मेरी मेहनत को फलदार बना दे। जिन जगहों पर मैं नाकाम हुआ वहां अब कामयाबी की गवाही कायम कर दे। ए खुदा, तेरे कलाम के मुताबिक मैं इकरार करता हूँ कि मैं कर्ज का गुलाम नहीं रहूंगा, मैं दूसरों का मोहताज नहीं रहूंगा, मैं किसी के रहम करम पर नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरा मंबा है, मेरा जरिया है, मेरा सहारा है। ए रब, जिन कर्जों ने मेरी नींद छीन ली, जो परेशानी मेरे घर में दाखिल हो गई, जो खौफ हर वक्त दिल पर बोझ बन गया, मैं इन सब को तेरे कदमों में रख देता हूँ। मैं अपने सारे बोझ तुझ पर डाल देता हूँ, क्योंकि तू मेरी फिक्र करता है। ए आसमानी बाप, आज मैं अपनी माली जिंदगी पर तेरे फजल का ऐलान करता हूँ। मैं यसू के नाम में हर माली बदरू के असर को तोड़ता हूँ जो बरकत के बहाव को रोके हुए है, जो ताकत मेरे रिस्क को कम कर रही थी, जो मेरे कामों को बंद कर रही थी, जो मेरे ताल्लुकात को खराब कर रही थी। ए खुदा, वो सब तेरे हुजूर फना हो जाए। ए रब, मैं ईमान के साथ कहता हूँ कि तू मेरे लिए नई राहें खोल रहा है, तू नए दरवाजे खोल रहा है, नए राबते, नए मौके, नए वसाइल दे रहा है। जहाँ कोई दरवाजा नहीं वहाँ तू दरवाजा बना रहा है, जहाँ सब खत्म लग रहा है वहाँ तू नई इब्तिदा दे रहा है। ए खुदा, मुझे वो हिकमत दे जो आसमान से आती है, ताकि मैं हर मौका को पहचान सकूं। मेरे फैसले तेरी मर्जी के मुताबिक हों, मेरी कमाई का हर हिस्सा तेरे जलाल के लिए हो। मुझे सिखा कि कैसे तेरे फजल के इंतजाम में चलना है। मेरे बाप, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे घर का हर फर्द तेरी बरकत में चले। मेरे बच्चों की तालीम, मेरे खानदान की सेहत, मेरे कारोबार की तरक्की सब तेरे हाथ में है। मेरे खुदा, मेरे घर से तंगदस्ती, कमी और खौफ का साया हटा दे। ए रब, मैं तेरे रूह के वसीला से माली ईमान में मजबूत होता जाऊं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरा रिस्क अब शैतान के काबू में नहीं बल्कि तेरे इख्तियार में है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तू मुझे कर्जदार नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बना रहा है। तू मेरी जिंदगी को दूसरों के लिए बरकत का जरिया बना रहा है। ए खुदा, मैं तेरी बादशाही के उसूलों के मुताबिक जीना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ कि तूने जो दिया है इसका सही इस्तेमाल कैसे हो। मुझे वो ईमान दे कि मैं देने में कभी न हिचकिचाऊं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि देने वाला कभी खाली नहीं रहता। मेरे रब, मैं तेरे हुजूर उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ जो इस दुआ को सुन रहे हैं और जिनके दिल कर्ज और गुर्बत से टूटे हुए हैं। ये खुदा, उनकी जिंदगियों को छू ले, उनके आंसुओं को खुशी में बदल दे, उनकी कमी को फरावानी में बदल दे, उनकी नाकामियों को कामयाबी में बदल दे। ए रब, तेरे फरिश्ते अभी उनके घरों, उनके कारोबारों, उनके काम की जगहों पर भेजे जा रहे हैं, ताकि वो हर बंदिश को तोड़ दें, हर माली कैद को खोल दें, हर रुकावट को मिटा दें। ए खुदावंद, जिन हाथों ने मेहनत की मगर फल ना पाया, उन हाथों को बरकत दे। जिन ख्वाबों को कर्ज ने दफना दिया, इन ख्वाबों को दोबारा जिंदा कर। जिन रास्तों पर अंधेरा छाया था वहां रोशनी ला। ए रब, तू वो खुदा है जो मुजिज़े करता है, और आज मैं ऐलान करता हूँ कि माली मुजिज़े जाहिर होने वाले हैं। मैं ईमान से कहता हूँ कि ये साल माली बहाली का साल है, ये साल कर्जों के खात्मे का साल है, ये साल नई आमदनी, नई जमीन, नए मंसूबों और नई खुशहाली का साल है। मेरे यसू, मैं तेरे शुक्र के साथ ऐलान करता हूँ कि मैं मजीद बोझ नहीं उठाऊंगा, मैं मजीद फिक्र नहीं करूंगा, मैं मजीद खौफ में नहीं जीऊंगा, क्योंकि मेरा खुदा मेरा फराहम करने वाला है। ए रब, जैसे तूने बियाबान में इसराइल को मन दिया, वैसे ही आज तू मेरे लिए गैर मुतवक्के रिस्क के दरवाजे खोल। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तू कुछ बना, जहाँ बंदिश है वहाँ रादे, जहाँ कमी है वहाँ बरकत का दरिया बहा। मैं ऐलान करता हूँ, मेरे घर में फरावानी होगी, मेरे हाथों में रिस्क होगा, मेरे दिल में अमन होगा और मेरी ज़बान तेरी तारीफ करेगी। ये खुदा, मैं तेरे वादे पर खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू वो खुदा है जो हमेशा अपनी बात पूरी करता है। तूने कहा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, और मैं ईमान से कहता हूँ, मैं बरकत याफ्ता हूँ। मेरी औलाद बरकत याफ्ता है, मेरा घर बरकत याफ्ता है, मेरी मेहनत बरकत याफ्ता है। और ए रब, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि तू कर्ज की लानत को तोड़ रहा है। तू मेरे लिए नए वसाइल, नए मौके और नई खुशहाली ला रहा है। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरी राहों पर चलूंगा, मैं अपनी बरकतों से दूसरों की मदद करूंगा, मैं अपने रिस्क में तेरे नाम को जलाल दूंगा। ए कादर मुतलक खुदा, मैं आज तेरे हुजूर ईमान के साथ खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू जिंदा खुदा है जो अपनी रियाया को कभी भूखा नहीं रहने देता। तू अपने बच्चों को कैसे भूल सकता है? ए रब,
तेरा शुक्र हो क्योंकि तूने आज मुझे याद किया है। तू मेरी दुआओं को सुन रहा है। तू मेरी जिंदगी में नया बाब खोलने वाला है। ये खुदावंद, मैं अपनी रूह की गहराई से तेरे हुजूर पुकार रहा हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी जिंदगी की कमी अब तेरे जलाल के सामने खत्म हो रही है। मेरे रब, वो दिन गुजर गए जब मैं अपनी हालत पर शर्मिंदा होता था। अब मैं तेरा फजल महसूस कर रहा हूँ। तू मुझे इज्जत दे रहा है। तू मेरी जिंदगी में माली आजादी लेकर आ रहा है। ये आसमानी बाप, मैं तेरी हुजूरी में अपने दिल की दीवारें गिरा देता हूँ। मैं हर खौफ, हर नाकामी, हर मायूसी को तेरे कदमों में रख देता हूँ। मैं अब अपनी कमी नहीं बल्कि तेरे वादों को देखता हूँ, और मैं ईमान से इकरार करता हूँ कि मेरा रिस्क अब तेरी हुजूरी से बहने वाला है। ए रब, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे हाथों में तू वो बरकत रख दे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। मुझे वो अक्ल दे जिससे मैं तेरे दिए गए वसाइल को दानिशमंदी से इस्तेमाल करूँ। मेरे फैसले तेरी मर्जी से मुताबकत रखते रहे। मैं कभी गुरूर ना करूँ बल्कि हमेशा याद रखूं कि हर नेमत तेरे फजल से है। ए खुदावंद, मैं तेरे रूह से भर जाना चाहता हूं ताकि मैं रिस्क की बरकत के साथ साथ रूहानी बरकत में भी बढ़ सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिर्फ माल व दौलत काफी नहीं बल्कि तेरी हुजूरी ही सबसे बड़ी दौलत है। ए खुदा, मैं सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि तेरी रजा चाहता हूं। मेरे बाप, मैं इन सब के लिए भी दुआ करता हूं जो आज मेरे साथ इस दुआ में शरीक हैं, जिनके घरों में फाका है, जिनके वालिदैन अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, जिनके कारोबार तबाह हो गए, जिनके बैंक अकाउंट्स खाली हो गए, जिनके पास देने को कुछ नहीं मगर ईमान बाकी है। ए रब, तू उनके ईमान को जवाब दे। तू उनकी जरूरतें पूरी कर। तू उनके आंसू को मुस्कुराहट में बदल दे। ए खुदावंद, जो बीमार हैं और इलाज के लिए रकम नहीं रखते, जो तालीम के लिए परेशान हैं, जो मकान या किराया देने के काबिल नहीं, ए रब, उनके लिए आसमानी दरवाजे खोल। फरिश्ते उनकी मदद के लिए रवाना कर। जहाँ कोई जरिया नहीं वहाँ तू जरिया बना। मेरे रब, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरे रिस्क पर अपना हाथ रख। कोई चूर, कोई लानत, कोई बदरू, कोई हसद, कोई रुकावट मेरे रिस्क को छू भी ना सके। ए रब, तू मेरे हाथों की मेहनत को मुकद्दस कर दे। तू मेरे मंसूबों में अपनी हिकमत डाल दे। तू मेरे ख्वाबों को हकीकत बना दे। मैं ईमान से ऐलान करता हूँ कि कर्ज का बोझ मेरी नस्लों से खत्म हो गया है। मेरे बच्चे कर्ज नहीं लेंगे बल्कि दूसरों को मदद देंगे। मेरे खानदान की माली हालत हमेशा बरकत में रहेगी। मेरे खुदा, ये मैं यसू के खून के वसीला से मांगता हूँ। ए रब, जिन जगहों पर मेरा नाम शर्मिंदगी से लिया गया वहाँ तो मेरा जलाल जाहिर कर। जिन्होंने कहा कि मैं नाकाम हूँ, उन्हें दिखा कि तेरा फजल हमेशा गालिब है। जिन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता, ए खुदा, वो खुद गवाही देंगे कि तेरा फजल हैरान कुन है। मेरे बाप, मैं तेरे वादों पर खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू कभी अपनी बात वापस नहीं लेता। तू वो खुदा है जो कहता है और पूरा करता है। मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं महरूम नहीं रहूंगा। मैं तेरी फरावानी में चिल्लूंगा क्योंकि तू मेरा बाप है। ये खुदावंद, मुझे इस मकाम तक पहुंचा जहां मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मुझे वो दिल दे जो देने में खुशी महसूस करे। मैं चाहता हूं कि मेरी बरकत दूसरों की दुआओं का सबब बने। ए रब, मेरी जिंदगी तेरे जलाल की गवाही बन जाए। ए खुदा, मैं तेरे हुजूर अपने घर के हर फर्द को बरकत देता हूँ। मेरी औलाद कभी भूखी नहीं रहेगी। मेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। मेरा खानदान कभी कर्ज के नीचे नहीं दबेगा। मैं ईमान के साथ ऐलान करता हूँ कि जमीन मेरी मेहनत को फल दे रही है। मैं ईमान के साथ ऐलान करता हूँ कि मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे कारोबार, मेरे घर, मेरे वसाइल सब खुदा के फजल से बढ़ रहे हैं। मेरे रब, मैं तेरी आवाज सुन रहा हूँ जो कह रही है, मैं तुम्हें नया मौसम दे रहा हूँ। मैं तुम्हें नए मौके दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर को बरकत से भर रहा हूँ। मैं तुम्हारे कर्ज मिटा रहा हूँ। मैं तुम्हें दूसरों के लिए रोशनी बना रहा हूँ। ए खुदा, मैं तेरे इन अल्फाज पर ईमान रखता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि गुर्बत मेरी नस्ल से निकल गई है। मैं ऐलान करता हूँ कि कर्ज की लानत जड़ से उखड़ गई है। मैं ऐलान करता हूँ कि अब खुशहाली, अमन, बरकत और फरावानी मेरी पहचान होगी। मेरे यसू, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तूने मेरी माली हालत बदली, मेरा दिल बदला, मेरी सोच बदली और अब मेरी जिंदगी तेरे फजल से चमक रही है। ए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आज मैं बंदिशों से आजाद हुआ। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि कर्ज की जंजीरें टूट गईं। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी रूह को अमन दिया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरे घर को बरकत का घर बना दिया। ए रब, मैं तेरे नाम को बुलंद करता हूँ। मैं तुझे जलाल देता हूँ।
मैं तेरी तारीफ करता हूँ क्योंकि तू वो खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। मैं ईमान से कहता हूँ ये वो दिन है जो खुदा ने बनाया है और मैं इस दिन में खुश हूँ क्योंकि मेरे कर्ज खत्म हो गए, मेरे वसाइल बढ़ गए और मेरा खुदा मेरे साथ है। ए आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरा रूह इस दुआ के दौरान ताकत से काम कर रहा है। मैं महसूस करता हूँ कि तेरे फरिश्ते उतर चुके हैं। ए रब, तेरा जलाल, तेरा फजल, तेरी फरावानी और तेरी रोशनी उन घरों में दाखिल हो रही है जहाँ अंधेरा था। ए रब, तेरा नाम मुबारक हो क्योंकि तूने गुर्बत के बादल हटा दिए, तूने रिज़्क की हुआ चला दी, तूने तंगदस्ती के कले गिरा दिए। मेरे खुदा, मैं तेरे हुजूर अपने ईमान के साथ खड़ा हूँ। तूने फरमाया था कि तू अपने बच्चों को रोजी देगा और आज मैं देख रहा हूँ कि तू अपने वादे को पूरा कर रहा है। ए रब, मैं ईमान से कहता हूँ कि मैं अब कर्जदार नहीं बल्कि कर्ज देने वाला हूँ। मैं अब महरूम नहीं बल्कि बरकत याफ्ता हूँ। मैं अब कमजोर नहीं बल्कि तेरे फजल से मजबूत हूँ। मैं अब कैद में नहीं बल्कि आजादी में हूँ। ए खुदा, जिन दीवारों ने मेरे रिस्क के बहाव को रोका, मैं यसू के नाम में उन्हें गिरने का हुक्म देता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि हर माली बंदिश, हर रुकावट, हर लानत, हर शरारत जो मेरे रिस्क के दरवाजे के आगे खड़ी थी वो अब खत्म हो गई है। ए आसमानी बाप, मैं तेरे रूह के वसीला से माली मौजिज़ों की बारिश का ऐलान करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि जो भी शख्स इस दुआ को ईमान से सुन रहा है, इसके घर में मौजिज़ा हो, इसके हाथों में बरकत हो, इसके कारोबार में तरक्की हो, इसके कर्ज मुआफ हो जाएं, इसकी कमी खत्म हो जाए, इसकी जिंदगी में तेरे फजल के निशान जाहिर हों। ए रब, जिनके पास कुछ नहीं उनके हाथ भर दे, जिनके पास रास्ता नहीं उनके लिए नया रास्ता बना, जिनके पास उम्मीद नहीं उनके दिल में नया ईमान पैदा कर। ए खुदा, तेरे फरिश्ते अब उनके घरों पर जा रहे हैं। तू उनके लिए आसमानी खजाने के दरवाजे खोल रहा है। ए मेरे खुदा, मैं ईमान से कहता हूँ तेरा फजल मेरे ऊपर बरस रहा है, तेरी कुदरत मेरे रिज़्क को बढ़ा रही है, तेरी रोशनी मेरे अंधेरों को दूर कर रही है, तेरा कलाम मेरे माली हालात को बदल रहा है। ए रब, अब मैं वो शख्स नहीं जो कर्ज में डूबा हुआ था, अब मैं वो शख्स हूँ जो ईमान में चल रहा है। मैं वो शख्स हूँ जो तेरे फजल से भरपूर है। मैं वो शख्स हूँ जिसके लिए तूने दरवाजे खोल दिए हैं। ए खुदा, तू मेरी मेहनत को बरकत दे, मेरे फैसलों को कामयाबी अता कर, मेरे तल्लुकात को मजबूत कर, मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोल जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे इन जगहों पर ले जा जहां मैं खुद नहीं पहुंच सकता। मेरे बाप, मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब तू मुझे बढ़ाएगा मैं तेरे नाम को बुलंद करूंगा। जब तू मेरे कर्ज खत्म करेगा मैं दूसरों के कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। जब तू मुझे तरक्की देगा मैं अपने रिस्क से तेरे काम में हिस्सा लूंगा। जब तू मेरी जिंदगी बदलेगा मैं तेरी गवाही दुनिया में दूंगा। ए रब, मैं ईमान से ऐलान करता हूँ, मेरा रिस्क अब महदूद नहीं बल्कि लामहदूद है। मेरा जरिया अब इंसान नहीं बल्कि खुदा है। मेरा ईमान अब कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है। मेरी जबान अब शिकायत नहीं बल्कि तारीफ से भरी है। मेरे खुदा, मेरी जिंदगी में वो वक्त आ गया है जब बरकतों का बहाव रोकने वाला नहीं। मैं जहाँ जाऊंगा तेरे फजल की खुशबू मेरे साथ होगी। मेरा हर कदम तेरे जलाल का बाइस बनेगा और जो लोग मुझे देखेंगे वो जानेंगे कि वाकई खुदा अपने बंदों को बरकत देता है। ए यसू, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मेरा फराहम करने वाला है। तूने मुझे भटकने नहीं दिया, तूने मेरी दुआएं सुनी, तूने मेरा बोझ उठाया, तूने मेरे कर्ज की जंजीर तोड़ दी और अब तू मुझे इस मकाम पर ले जा रहा है जहां मैं दूसरों के लिए बरकत बनूंगा। मैं ईमान के साथ ऐलान करता हूं कि मैं कर्ज की लानत से मुकम्मल आजाद हूं। मेरे हाथों में बरकत है, मेरी जबान पर शुक्रगुजारी है, मेरा दिल अमन से भरा है, मेरी जिंदगी फजल की गवाही है। ए खुदा, तेरा जलाल मेरी जिंदगी में जाहिर हो, तो मुझे अपनी रोशनी में चलाए रख और जब मैं फ्रावानी में जीऊं तो मेरा दिल हमेशा तेरे करीब रहे। मेरे साथ ईमान से कहिए, ए खुदावंद यसू, मैं ईमान रखता हूँ कि तू मेरा फराहम कुनिंदा है। तूने मेरे कर्ज की लानत तोड़ दी है, तूने मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दिए हैं। मैं आज से कमी नहीं बल्कि फ्रावानी में जीने जा रहा हूँ और मेरा घर तेरे फजल से भरा होगा। आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर अपने इस दुआ को ईमान से सुना है तो याद रखें, खुदा ने आज आपकी जिंदगी में कुछ तोड़ दिया है, कुछ खोल दिया है और कुछ नया पैदा किया है। अब मायूसी नहीं, सिर्फ ईमान। अब गुर्बत नहीं, सिर्फ बरकत। अब कर्ज नहीं,
बल्कि आजादी होगी। कमेंट में ईमान से लिखी, खुदा मेरे रिस्क के दरवाजे खोल रहा है। ये ईमान का ऐलान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक रूहानी मुआहिदा है जो आसमान पर लिखा जा रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा के मजीद कलाम, मजीद दुआएं और रूहानी ताकत आपकी जिंदगी में बहती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप खुदा के अगले पैगाम से महरूम ना रहें। और याद रखें, जब खुदा दरवाजे खोलता है, कोई इंसान उन्हें बंद नहीं कर सकता। खुदा आपके साथ हो। आमीन।